Hello everyone, this is Shweta Negi. Welcome to you, my YouTube channel Experience the Maths. And today in this video we are going to discuss about inverse variation, 8th class chapter 9. So inverse variation is when two quantities and the value of two variables link with each other in such a way that if the value of first quantity or variable is increasing, then the value of another second quantity is decreasing. And if the quantity of the value of the first quantity is decreasing, then the value of second quantity is increasing. Means if suppose we have two variables x and y, and we will say x varies inversely as y when x is directly proportional 1 upon y. That means when we will remove the sign of proportionality, the one constant we will add, that is k. Means the x and y relate each other inversely. Means if the value of y increase, then value of x will be decrease. So inverse variation means when the value of one variable or one quantity will increase, then the value of another quantity will be decrease. Okay. So now we will understand it with one example. Suppose we have a field, grass field, and some number of cows and number of days. If the same field grazed by two cows, they are taking how many days? 12 days. It is sufficient for two cows for the 12 days. 3 cows are grazing the field in 4 days. 4 cows are grazing the field in 6 days. And 6 cows are grazing the field in 4 days. Okay. So here clearly we can see, if we are increasing the number of cows 2, 3, 4, 6, then the number of days are decreasing. 12, 4, 6. Here will be 8. Okay. 3 cows are grazing the field in 8 days, 4 cows in 4 days, 6 days, and 6 cows are grazing the same field in 4 days. Here from this table we can clearly understand the number of cows when increasing, the number of days are decreasing. So if I'll take this variable as x and this variable as y, then we can say the x varies y inversely. Means they both have the inverse relationship. Okay. Number of cows is increasing, number of days are decreasing. Okay. So now if we will see from this table, one thing we will notice, 2 into 12, that is 24. 3 into 8, again 24. 4 and 6, 24. And 6 into again 24. So if we will notice, the product of both the variable or both the quantity is same, that is constant. So if we will generalize our formula, so we can say x into y will be constant. X into y, which we can say is equal to k. K is a constant. K is a constant here. So in inverse variation, the product of two quantities or variable always will be a constant, that is k. And here this constant is called constant of variation. As we have learned in our direct variation,
y upon x will be equal to k. But in inverse variation, the product of both the variables, that means x into y, will be equal to k, and this k is called constant of variation. Constant of variation. So now we have understand two things in inverse variation. First, if the two quantities are related to each other, they have inverse variation when the value of one quantity increase and the value of another quantity will be decrease. Second important rule for the inverse variation, that is the product of both the quantity will be always constant, and that is called the constant of variation. So now we will generalize our inverse variation, how the value of two quantity relate to each other. Okay, किस तरीके से इनका आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है. Now we will learn that. So suppose we have two variable a and b, and the value of, when the value of a is a1, the value of b is b1, and when the value of a variable is a2, and then value of b is b2. Means general, हम now we are generalizing the formula कि how when the two quantities are in varies inversely, how they behave. ठीक है. So now we have learned in our the product of both the quantity will be constant. So a1 into b1 हमारा k हो जाएगा, constant होगा. सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, a2 इंटू b2 विल भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. इसको अगर इक्वेशन 1 कंसिडर करें, इक्वेशन 2 कंसिडर करें, तो ये देखो यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, एक ही सिचुएशन के लिए. तो हम लिख सकते हैं a1 इंटू b1 विल बी इक्वल टू a2 इंटू b2. ठीक है. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b2 अपॉन b1. अगर हम इसे थोड़ा रेशो के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम a1 रेशो a2 इज इक्वल टू b2 रेशो b1. तो यहाँ पे क्या हो गया इनका, a वेरीज b इन्वर्सली, और इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b वेरीज इन्वर्सली एज a, मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली वेरी करते हैं. दोनों के बीच क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो कि हमारा रूल भी कह सकते हैं इन्वर्स वेरिएशन का, ये हमारा रूल भी बन जाता है. तो इस तरीके से हम जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि हम इसको किस तरीके से आगे सॉल्व कर रहे हैं. तो दैट इज़ अवर इंट्रोडक्शन फॉर द इन्वर्स वेरिएशन. ओके, नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड विल सॉल्व इट टुगेदर. Okay, now we will solve the question from 9b exercise. It is question number 2 and A part. So we have given the different value x and the corresponding value of y. Means when the value of x is equal to 3, y is 11, 6, 22, and here it was question mark. I have written here x1, x2, and here it is y1. So first, in the question he is asking that first we have to check x varies y, direct variation or inverse variation. So first we have to check with the help of table. So now let's see, is there direct variation or inverse variation. So see, when the value of 3 is 11, the value of x is 3, the value of y is 11. Here it is increasing 6. Again here it is increasing. So now we can assume that they have direct variation. But they have direct variation. और अगर आप इसको फॉर्मूले से भी चेक करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो चेक विद द हेल्प ऑफ y. क्या होता है हमारे पास, y अपॉन x होता है. तो इसको इसकी कंडीशन के लिए चेक करके देख लें. y अपॉन x कितना हो गया, 11 अपॉन 3. ठीक है. दूसरा हमारे पास कितना है, 22 अपॉन 6. तो कितना आएगा, 113. तो आ गया. तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है, y अपॉन x क्या है हमारे पास, सेम है. तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है. तो आप हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को. इन्वर्स वेरिएशन में दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, और
डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, दोनों का जो डिवीज़न है, जो उनका डिवीज़न है वो कांस्टेंट आना चाहिए, और इन्वर्स में दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो फटाफट से डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स आपको मालूम है दोनों क्या होंगे, दोनों के एरो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होते हैं। इन्वर्स में एक अप होता है, दूसरा डाउन होता है। चलिए ठीक है, तो हम इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेरिएबल कंसिडर किए हुए, अब हमें पता चल चुका है कि दे हैव डायरेक्ट वेरिएशन। तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं 6/x1 इज इक्वल टू 22/33। ठीक है, 11 2 जा, 11 3 जा एंड 2 3 जा। सो द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 9। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। चलिए फटाफट से आगे का भी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस y1। 9/27 इज इक्वल टू 33/y1। 9 3 जा and y1 will be equal to 99. So here the value of y1 is equal to 99. Now we have to find out this last variable x2. So x2 27/x2 which is equal to 99/880. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 1 जा 11, 11 8 जा, ये आ गया हमारे पास, इस तरीके से कुछ आ गया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 80 आ गया। सो x2 आ गया हमारे पास 3 × 80 80। सो वैल्यू ऑफ x2 विल बी 240। सो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 240। तो इस तरीके से पहले हमने चेक किया इसमें कि डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है। फिर हमने देखा कि डायरेक्ट वेरिएशन है, तो फिर हमने क्या करा, फटाफट से जो हमारा तरीका है सॉल्व करने का उसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया बच्चे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी का एक नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिसमें कि हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन होगा। इन्वर्स वेरिएशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, एक क्वेश्चन हम उसमें से ले लेते हैं। ठीक है, okay, now we are going to solve question number 2, C part. Okay, so now we will see in C part how both the variables are varying. Is there a direct variation or inverse variation? Okay, so now first we will see the value of x is 2 here, and here the value of y is 48. Now the value of x is 3 and the value of y is unknown. I am considering it as y1. Okay, value of x is 4 and here it is 24. So now here we can see the value of x is increasing and the value of y is decreasing. See, here it is 16. That means here it is 48. So the value of y will be lying between 48 and 24 somewhere. Now again it is decreasing, 24 से और ज़्यादा ये कम हो गया है। तो हम देख सकते हैं इसमें कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं दे आर वेरिंग इन्वर्सली, दे हैव इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन में हमें मालूम है कि जो किस तरीके से लेते हैं, एक एरो को जो होता है हेड अपर डायरेक्शन में होता है और दूसरे का हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो आप इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका इसका ये है कि हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है कि जो हमारे पास जो इन्वर्स वेरिएशन होता है उसमें दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। कि जब भी हम दोनों इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x और y को, तो उनका हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा हम जो एक मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन के लिए 3 और 2 एंड 48 और y1 के लिए मैं एक आपको जो हम प्रीवियसली चले आ रहे थे उस मेथड से करते हैं, और बाकी की दो वैल्यू को मैं आपको दूसरे वाले मेथड से बता देती हूँ। है वही, लेकिन थोड़ा सा करने का एक तरीका चेंज हो जाता है। जो सेकंड वाला होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए उसको देख लेते हैं हम फटाफट से कैसे करना है। पहले वाला मैं बताती हूँ। इन्वर्स वेरिएशन है बिकॉज आप इसमें लिख सकते हैं रीजन, the value of x is increasing but the value of y is decreasing, so they have inverse variation. x varies inversely as y. ठीक है, इस तरीके से आप एक लाइन लिख देंगे इसमें।
अब सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। और मैंने बता ही दिया आपको कि क्यों वो इनवर्स वेरिएशन है। एक्स की वैल्यू आप सिंपली टेबल से भी देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है और वाई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है तो क्या होगा, आपको मालूम है B2/B1 होता है। तो ये अगर मैं इसको B2 कंसिडर करूंगी तो ये हो जाएगा Y1/48। क्यों हुआ, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है। हाँ, अब हम लिख सकते हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चे इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने ये इसको इस तरीके से क्यों किया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 16 जा एंड y1 इक्वल टू 32। तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 32। ठीक है, अब जो ये बाकी के जो दो हैं मैं आपको उस वाले तरीके से बताती हूँ कि जो हमने किया हुआ है। एज वी नो इन इफ द टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट देन x इंटू वाई विल बी क्या होगा, कांस्टेंट k होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 48 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 96। ठीक है, इसका मतलब हर केस में x और y की वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें इन दोनों में देख लेते हैं हम। x1 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 96। एज हम लिख सकते हैं कि x एंड y के बीच का जो रिलेशन है एज, ठीक है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। सो x1 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 96/16 कितना आ जाएगा, 6 जा। ठीक है, x इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, और फिर अब हम y2 की भी निकाल लेते हैं यहीं से। ठीक है, y2 की हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें y2 के लिए। ठीक है, तो y2 हमें मालूम है कितना आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 96 आना चाहिए। 8 इंटू y2 विल बी इक्वल टू 96। सो y2 विल बी इक्वल टू 96/8। 8 1 8, 8 2 16। सो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 12। इसको थोड़ा सा हम y2 इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हमारे x1 y1 और y2 की वैल्यू निकल जाती है, क्योंकि दे आर इन्वर्सली दे हैव इन्वर्स वेरिएशन। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया वो भी वही है। ये यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे उसका फाइनल हम डायरेक्टली उसके जो फाइनल कंक्लूजन है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट सॉल्व हो गए। बाकी की जो रिमेनिंग 2 पार्ट है यू विल सॉल्व बाय योर ओन। Now let's solve question number 3, C part. And in C part we have given that C is inversely proportionate to D. Means C और जो D है they have inverse variation, and somewhere when C equal to 18 the value of D is equal to 2/3. We have to find the value of D1 when the value of C is equal to 6/7. तो इस तरीके से I am representing द गिवन स्टेटमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब बेसिकली हमें इस डी को फाइंड आउट करना है। जैसे कि उसमें हमें गिवन है कि दे हैव कैसा रिलेशन उनके बीच में, इनवर्स रिलेशन है। कैसा है, इनवर्स। तो इनवर्स रिलेशन में मैंने आपको बताया एक एरो डाउनवर्ड आएगा और जो दूसरा एरो है उसको अपवर्ड लगा लीजिए। ठीक है, मतलब उनको हम क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18/6/7, okay, that equal to D1/2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 18 अपॉन्स विल बी गो टू द न्यूमरेटर डायरेक्टली। 7/6 इज इक्वल टू 3 इंटू D1 अगेन। अपॉन्स विल बी गो टू द टॉप न्यूमरेटर and upon 3, okay, sorry, upon 2. ठीक है, 3 6 जा 18, this 6 and this 6 will be cancel out. Now we have 7 and here it is 2 and D1. So D1 equal to 7 2 जा 40. D1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1414। ठीक है बच्चे,
इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसमें भी देख लेते हैं कि हमारे पास m और m2 की वैल्यू गिवन है, हमें m1 की वैल्यू निकालनी है, जबकि m वेरीज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। दोनों के बीच कैसे रिलेट है एक दूसरे, कैसा प्रोपोर्शन है दोनों के बीच, इनवर्स प्रोपोर्शन है। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम, इसमें भी देख लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो आपको मालूम है एक एरो आएगा डाउन। ये याद करने का एक तरीका है, जो ये मैं एरो लगा रही हूँ ना इसमें, ये जो मैंडेटरी नहीं है आपको पुट करना ही है, ये एक इन्वर्स में थोड़ा सा एक हमको क्या होता है ट्रिक टाइप से हो जाती है कि इन्वर्स है तो भाई एक एरो डाउनवर्ड। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि इसमें हमें बोलिए एक की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिक्रीज हो रही है। अगर दूसरे की डिक्रीज होगी तो पहले की इंक्रीज होगी। तो ये इस तरीके से एक चीज़ को थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ताकि हम इसको चीज़ों को थोड़ा टेक्निकली सीख लें। ठीक है, और ये तरीका मुझे अच्छा लगता है। ये मतलब एक बहुत हमेशा फिर आपके माइंड में ये चीज़ें रहती है कि इन्वर्स है तो भाई ऊपर नीचे एरो जाएंगे, और डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में एरो जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी भी समझ सकते हो इस तरीके से। चलिए अब हम इसमें कर लेते हैं, हमें m1 की वैल्यू निकालनी है 0.02 अपॉन m1 विल बी इक्वल टू, अब इन्वर्स है तो 0.2 अपॉन 5। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा हमारा, चलिए m1 इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, m1 विल बी मल्टीप्लाई विथ 0.2 एंड 5 विल बी मल्टीप्लाई विथ 0.02। सो 5 इंटू 0.02 अपॉन 0.2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये डेसिमल से ये कैंसिल होगा तो एक डेसिमल आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा, आप इसको पहले 10 से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ऊपर नीचे। अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप बोलोगे कहाँ गया डेसिमल, किधर गया डेसिमल, है ना। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा बच्चे, क्या 0.5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास m1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। छोटी सी कैलकुलेशन है डेसिमल का, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमारे ये इन्वर्स वेरिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे। इन्वर्स वेरिएशन को आपने समझा होगा। अब इस पे जब बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम आएंगी और जब हम विल सॉल्व द क्वेश्चन टुगेदर डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का, तब बहुत और भी हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कि भाई इन्वर्स वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, सॉल्व करो, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कर दे रहे। जब क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि इनके जो एक्स और दो वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन, इज द डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, we have given that a student name is as Naveen. He is going to school with the cycle, and speed is given in kilometer per hour and time was given 20 minutes and 15 minutes. Okay, so as we know the basic rule of maths, before calculating and solving, first we have to convert all the quantities in same unit. ठीक है, here it is given किलोमीटर पर आवर्स, स्पीड हमें जो गिवन है किलोमीटर पर आवर्स में गिवन है, और जो टाइम हमें गिवन था वो हमें मिनट में गिवन था। सो नाउ आई एम कन्वर्टिंग द टाइम इन आवर्स। ओके, जो मिनट है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है, आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलिए क्या क्वेश्चन में गिवन है उसको हम पहले थोड़ा देख लेते हैं कि नवीन इज गोइंग to school with the cycle if his speed is 12 kilometer per hour, he is taking 20 minutes. How much minute? 20 minutes. तो इस 20 मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया है। ठीक, सो नाउ इफ यू वांट टू रीच द स्कूल इन 15 मिनट, हाउ मच टाइम? 15 मिनट। तो सेम 15 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि उसको अपनी स्पीड को कितना क्या करना पड़ेगा। अब बताओ भाई, अभी यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन कुछ नहीं गिवन है। ये एग्जांपल मैंने आपको बहुत, जब मैंने आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी
इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस स्कूल से और उसके घर की डिस्टेंस फिक्स्ड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड है 12, टाइम हो रहा है उसका 20 मिनट्स। ऑब्वियस सी बात है, अब उसको कम टाइम में पहुँचना है, डिस्टेंस उतनी ही हैज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस, बट नाउ ही हैज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस विद इन लेस टाइम। तो ऑफकोर्स बात उसको अपनी साइकिलिंग क्या करनी पड़ेगी, फास्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास है वो कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है बच्चे। स्पीड और टाइम के बीच कैसा रिलेशन है, दे आर इन्वर्स वेरिएशन, मीन्स स्पीड वेरीज इन्वर्सली एज टाइम के साथ उसका इन्वर्स वेरिएशन का रिलेशन है। ओके, तो हम क्योंकि इतना अब लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होगा आपका कि भाई जब उसको स्पीड फास्ट करेगा तभी तो कम टाइम में पहुंचेगा। बस अपने समझने के लिए आप यहाँ पे लगा लीजिए इन्वर्स के एरोज। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड कि वो 15 मिनट में पहुंच जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इनको 60 से डिवाइड कर चुकी हूँ। क्यों कर चुकी हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। सेम हर एक मतलब जो टाइम की क्वांटिटी है वो सेम, क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर्स में गिवन है, तो इसलिए मैंने इस मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। 12/x इज इक्वल टू 15/60/20/60। चाहे तो आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके, ठीक है बच्चे। चलिए 12/x इज इक्वल टू 15/60 इनटू, आपको मालूम है रैशनल नंबर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास डिवाइड का साइन होता है इट विल बी कन्वर्ट एज, इसका जो डिवाइड का इन्वर्स हो गया मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर का जो रैशनल नंबर्स होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्स रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/20। ये 60 से 60 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। सो x इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब उसको जो उसकी जो एग्जिस्टिंग स्पीड है ना उसमें उसको कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर पर आवर्स का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 16 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से अगर वो साइकिलिंग करेगा सो ही कैन रीच द स्कूल विद इन 15 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16, बस 16 लिख दीजिए यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है वैसे लिखना, पर मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 इज 28 pumps can empty a reservoir in 18 hours. In how many hours can 42 pumps such pumps do the same work? ठीक है, कोई रिजर्वियर है जिसमें कि हम वाटर को रिजर्व रखते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं 28 पंप्स की हेल्प ले रहे हैं, सो द वाटर टैंक और रिजर्वियर कैन बी एम्पटाइड इन हाउ मेनी आवर टाइम, इन 18 आवर्स। जो टाइम है वो आवर्स में हमें गिवन है, ठीक है। इधर नंबर ऑफ पंप्स है, पंप्स नंबर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेम हमें वही रिजर्वियर को एम्पटाइड करना है। नाउ वी आर यूजिंग द 42 pumps, so how much time will it take? तो आपको मालूम है, जाहिर सी बात है, जब हमने नंबर्स ऑफ पंप्स को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो वो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अभी वही सेम टैंक को 28 पंप यूज़ कर रहे थे, सो हाउ मच टाइम, 18 आवर्स लग रहे थे। अब हमने नंबर ऑफ पंप्स को बढ़ा दिया है, वही फटाफट काम होगा। तो जाहिर सी बात है, दे नंबर ऑफ पंप्स एंड टाइम्स वेरी इन्वर्सली करते हैं। तो फटाफट से इसमें अपोजिट एरो लगा दीजिए, वन इज डाउनवर्ड्स अनदर इज अपवर्ड। तो जो टाइम है मैं इसमें कर सकते हैं कि लेट 42 पंप कैन एम्पटाइड द रिजर्वियर इन x आवर्स, ठीक है। तो वो हम लिख लेंगे। तो 28/42 ओके इज इक्वल टू x/18, क्योंकि हमारे पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ से कितना को कैंसिल आउट हो रहा है।
तो 4 से नहीं हो रहा है, ये 7 से हो रहा है ना, 7 से, 7 4 जा 28 एंड 6 जा, ठीक है, 7 4 जा 28 एंड 7 6 जा 42, और ये 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो अब 4 और ये 3 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ गया 12 hours, मीन्स 42 pumps can empty the reservoir in 12 hours, ठीक है। तो जो रिजर्वियर मीन्स जो जिसमें कि हम किसी वाटर को रिजर्व करते हैं, उसमें से 12 आवर 42 जो टैंक है, सॉरी पंप है, वो कितना टाइम लेंगे, 12 आवर्स। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है हमारे पास, इनवर्स रिलेशन था, इनवर्स प्रपोर्शन में थे वो दोनों, ठीक है। तो ये हमारे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी interesting question and which is very related to our day to day life. A contractor who had a workforce of 630 person undertook a complete a portion of a stadium in 14 months. Okay, he was asked to complete the job in 9th month. How many extra person had he to employ? मीन्स कोई स्टेडियम का कोई वर्क था एंड एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसपे कि ऑलरेडी 630 पर्सन ऑन वर्क थे, एंड ही हैज़ टू कंप्लीट द वर्क ऑफ स्टेडियम, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम इन हाउ मेनी मंथ, 14 मंथ. Now suddenly his senior said that now you have to complete the same work in how many month, 9 month. Okay, तो अब उसको क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को सेम काम कम समय में करवाना है. 14 आपका ज़्यादा है, 9 14 के कंपैरिजन में कम है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम काम, जबकि उसके पास 14 मंथ थे, अब वही वर्क उसको 9th मंथ में कंप्लीट करना है. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, व्हेन ही विल इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्क फोर्स. तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि सपोज जो एक्स पर्सन है, टोटल नंबर एक्स पर्सन मिल करके उसी स्टेडियम के वर्क को कितने मंथ में कंप्लीट कर देंगे, 9th मंथ में. तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ क्या है, टाइम हमारा जो मंथ है वो डिक्रीज हो रहे हैं. तो इनवर्स रिलेशन है पर्सन और मंथ के बीच, मतलब जो वर्क फोर्स है और जो टाइम है. तो 630 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 14. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 का 0 एंड 70. कितना आ गया, 3 7 जा 21. सो एक्स विल बी इक्वल टू 98. ठीक है, 90 मीन्स अब उसको कितने, ये 980 जो पर्सन है वो उसी काम को, जो स्टेडियम का जो वर्क है उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, 9 मंथ में कंप्लीट कर देंगे. अच्छा, अब उसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा है कि 9 मंथ में कितने पर्सन उस काम को कंप्लीट कर देंगे. हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, हमसे ये पूछा है कि उस काम को 9th मंथ में कंप्लीट करने के लिए उसको कितने और पर्सन को हायर करना पड़ेगा. हाउ मैनी मोर पर्सन ही रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्टेडियम वर्क विद इन 9 मंथ. तो देखिए बच्चे, 360 तो उसके पास ऑलरेडी थे, ठीक है, और 980 उसको चाहिए. ठीक है, तो हम the earlier how much employee he has or worker he has, earlier he has equal to 630 person, he required 980. how many more he want, more
person he required or he needed 980 minus 630, क्योंकि बच्चे 630 तो उसके पास ऑलरेडी है और 980 उसे चाहिए, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 053 350%। मतलब उसको जो अपनी जो कंपनी है, अपना जो उसका कॉन्ट्रैक्ट का जो बिजनेस है, उसमें उसको उस स्टेडियम वर्क को 9 मंथ में कंप्लीट करने के लिए 350% उसको और हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में वी हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स वेरिएशन। नाउ यू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस and try to solve some other question from your exercise. So if you have any doubt in these questions or in your exercise questions, so you can ask me personally. Thank you, children.